So let us discuss the stuff that we have done in our last session. Okay, so हमने last session में क्या क्या पढ़ा था, which all command we have seen, can you just revise it here? Fine, in the chat box, can you guys mention it? Yes, exactly. Git init, git add. Others apart from Anurag, दूसरे लोग, git commit, exactly. Status, yeah, git diff, yeah, exactly. And one more we have seen, yeah, git init, git add, git commit, git status, git diff. And which one it was? One more, git log. Amazing. Fine. So what all command we have seen? Okay, so let me share my screen now. Okay, and we will just brief it out what we have seen, we have covered in our last lecture. Fine. So can you guys able to see my screen first? दिख रहा है सबको? Yes. Kindly acknowledge me. Yeah, thank you so much. Okay, so हमने first of all कौन सा command देखा था, which was git init, that help us in initializing this project. So क्या होता है उससे, git will be attached, okay, and it will be able to track a project from now onwards. Okay, git init का वो मतलब होता है. Then later we have seen the command that is git status. Right, git status से क्या दिखाता है, हमारा status ये दिखाता है हम about a folder. Okay, that is the project has been saved to a git or not. राइट, देन लेटर वी हैव सीन गिट ऐड. गिट ऐड से हम क्या होता है, जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है वेयर वी आर वर्किंग, राइट, वो वहां से कहाँ पर मूव होता है, इन अ स्टेजिंग एरिया. व्हाट डज दिस स्टेजिंग एरिया इज, हम बेसिकली हमारा जो लोकल स्टोरेज होता है, ओके, वेयर वी वर्क इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. वर्किंग डायरेक्टरी वेयर वी वर्क, स्टेजिंग एरिया, देन वी हैव द गिट रेपोजिटरी. ओके, सो जब हम ऐड करेंगे, फाइन, तो क्या होता है, वो वर्किंग डायरेक्टरी से इट विल बी सेव्ड, दैट इज इट विल बी पार्शियली सेव्ड इन अ स्टेजिंग एरिया. राइट, देन लेटर हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको फुल्ली सेव करना होता है, बिकॉज वी कांट एबल टू ट्रैक if a commit, or we can say if a folder has been saved partially. Fine, so for that reason हम कौन सा command के use करते हैं, that is a git commit. Okay, that will save a file, a folder on the git repository. Right, फिर उसके बाद हम git diff को देखे थे, that is git diff. Okay, that help us in analyzing the code जो हमारा प्रीवियस कमिट से चेंजेबल है. राइट, देन लेटर वी हैव सीन, ओके, देन लेटर वी हैव सीन द गिट लॉग. गिट लॉग हम क्यों यूज करते हैं, हमें जो भी कमिट है, राइट, प्रीवियस 2 to 3 कमिट हमें देखना होगा. फाइन, तो ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी यूजिंग the git log. And why we use this git log is to get that id for each commit. Okay, so why we use that id, it will be used in a today's session. Okay, जब हम हमारा वर्जन कंट्रोल का देखेंगे. Fine. So till here, is there anyone having doubt? सबको clear है? Have everyone practiced it at home? Yeah. Yeah. Amazing. Jay. Others? Exactly. Okay. So in our today's session, we'll be covering the most important concepts. Okay, that is the Git version control. Okay, how can we do that? Yeah, you have raised your hand. कुछ doubt है आपको? निकिता? Yes. Fine, no worries. Okay, अगर आपको कुछ डाउट होगा, so by end of the meet, okay, after the once our class get ended, we will solve out. Okay, no worries. Okay, so आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, just wait, the people are entering now. Sorry for the interruption guys. Sorry. So आज हम तीन टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट देखने वाले. The first one is the git version control. ओके, हम कैसा वर्जन कंट्रोल करते हैं, बाय यूजिंग द हार्ड एंड सॉफ्ट रिसेट. ओके, बाय रिसेट कमांड. देन लेटर विल बी सीइंग द गिट ब्रांचेस. ओके, ब्रांचेस क्या होते हैं नॉन. फाइन, एंड लेटर विल बी सीइंग गिटअप. ओके, सो गिटअप क्या होता है, एंड हाउ कैन वी शिफ्ट अ कोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज टू क्लाउड स्टोरेज. ओके, दैट इज ऑन द गिटअप. ओके, वो सब देखेंगे. देन वेयर जो हमारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं ऑन द गिटअप, हाउ कैन वी ब्रिंग into our system, right, हमारे लैपटॉप हमारे पीसी पर कैसा लेके आ सकते हैं, हाउ कैन वी एबल टू डील विद दैट प्रोजेक्ट एंड ऑल. ओके, विल बी सीइंग इट टुडे. फाइन, सो इट विल बी सिंपल फॉर नाउ. ओके, डोंट वरी, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला देखेंगे, दैट इज अ गिट वर्जन कंट्रोल. सो बिफोर दैट, आर यू गाइज रेडी? फाइन, शुड वी बिगिन नाउ?
Yeah, amazing. Fine. So फर्स्ट वन इज द गिट वर्जन कंट्रोल. ओके, एंड इसके अंदर हम दो कमांड्स देखने वाले. डेट इज गिट रिसेट में टू पार्ट्स, डेट इज हार्ड रिसेट. ओके, एंड देन वी हैव रिसेट सॉफ्ट. ओके, what are these दो both stuff? Don't worry, I'll be making you understand in a while. Okay, so हम पहला वर्जन कंट्रोल देखते हैं. तो वर्जन कंट्रोल, as I have said, let me draw first. Okay, so this is a version 1 of our this software. This is a version 2 of a software, and this is a version 3. Okay, now let me label it as well. So this is a version 1. Fine, then we can say this is a version 2 and this is a version 3. Okay, there was no error when we shift from version 1 to version 2. Fine, there were no bugs, no errors in a version 1 to version 2. There was no error when we went from version 2 to version 3. Okay, कुछ errors नहीं था, bugs नहीं था. But after few days, okay, जैसा हमारे वेबसाइट पर और वी कैन से हमारा सॉफ्टवेयर ट्रैफिक आना बढ़ गया. सो ड्यू टू विच कुछ अननेसेसरी चेंजेस के कारण हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स आने लग गए. फाइन, सो व्हाट वी वांट, हमारा वर्जन 2 विच वाज द स्टेबल वर्जन, राइट. सो नाउ लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर अभी एरर्स आ रहे एंड बग्स आ रहे, राइट. Fine, our server is getting down again and again. Fine, because it is not being stable and it can't able to handle that much traffic. So हमें क्या चाहते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्जन 3 से वर्जन 2 में हमें स्विच करना होगा, बिकॉज हमारा वेबसाइट लाइव होना चाहिए, राइट. सो व्हाट विल बी डूइंग, विल बी जस्ट switching this from version 2 to version 3 to version 2, right. Okay, and what we want यहाँ पर there is two necessities. That is, देखो, two necessities is that जो भी हमने वर्जन 3 के लिए कोड किया था, ओके, वी वांट दैट कोड. ओके, सो वी कैन से वर्जन 3 कोड रिक्वायर. ओके, सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिसेट सॉफ्ट. ओके, डोंट वरी, हम रिसेट सॉफ्ट कमांड का यूज कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, वर्जन 3 से वर्जन 2 में जाएंगे. फाइन, एंड लेटर हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्जन 3 का कोड होगा इट विल बी देयर विद अस इटसेल्फ. फाइन, एंड हमारा एक यहाँ पर कंडीशन होगा, डेट इज हमें वर्जन 3 से वर्जन 2 पर जाना है, बट वर्जन 3 के लिए जो भी हमने कोड लिखा था हमें उसको पूरा डिलीट करना है. वी डोंट वांट इट. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट विल बी यूजिंग द कमांड दैट इज रिसेट हार्ड. तो आप नाम से समझ सकते हो, अगर हार्ड रिसेट है तो हमारा जो भी कोड लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल वर्जन 3, okay, it will be lost. So I can say the reset hard will do what it will do, our code will be lost. Okay, so I will say code will be lost. Okay, so हम पहला वर्जन कंट्रोल देख रहे हैं, that is by using the command git reset hard and git reset soft. Okay, so git reset soft क्या करेगा, हमारा प्रीवियस वर्जन में जाएगा, that is a previous commit पर जाएगा. फाइन, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो भी हमने कोड लिखा होगा फॉर दैट कमिट, मतलब जो हमारा करंट कमिट था, इट विल बी देयर विद अस. समझ रहे हो. ओके, वेर एज हम जब गिट रिसेट हार्ड का यूज करेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम हमारा जो रिसेंट कमिट था, ओके, वो जो भी कमिट के लिए हमने ये लिखा था कोड, इट विल बी लॉस्ट. फाइन, हैव एवरीवन गॉट इट, द ब्रीफ आइडिया हम क्या करने वाले अभी, थोड़ा कुछ समझ में आया. यस, अदर्स अपार्ट फ्रॉम जय, या, अमेजिंग. Okay, so let us make one file again over here. Just wait. I can say it for now. Let us open this with an VS Code. Yeah, so it's been opened here, right? Now what we'll be doing? We'll be making one file. Okay, that is index.html. Just wait. Just wait. Yeah, thank you. So index.html हम एक फाइल बना रहे हैं. Just ignore the name, okay, the .html extension over here. Don't worry. Fine. So first of all, let us write a one line of code. But before that, हम क्या करेंगे? पहला हमारा repository ये कर लेंगे. That is initialize करेंगे. So I will let us initialize it first. So I will be saying git init. Okay. So before that, is my screen visible perfectly? Should I zoom it? Zoom करना है or is it visible to you perfectly fine, guys? दिख रहा है आपको स्क्रीन, दिस VS कोड, अदर्स?
विजिबल या अगर कुछ होगा तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. ओके, इन केस अगर मेरा कुछ नेटवर्क इशू भी बीच में आता है तो प्लीज डू रेज योर हैंड. फाइन, चलो फिर लेट्स सी इट. ओके, सो पहला हम क्या करेंगे, गिट इनिशियलाइज कर दिया है. नाउ लेट अस राइट द कोड्स. आई विल बी राइटिंग. लेट अस राइट hello, welcome to a third day of front end bootcamp. Fine. Okay, now what we'll be doing, we'll be seeing हमारा फाइल सेव है कि नहीं. So it won't be saving, right? Okay, so इसके इस untracked फाइल मतलब हमारा अभी तक ऐड भी नहीं हुआ है, right, to a staging error. So how can we do it? By using the command git add, and we can write the name of the file. और एक मैंने शॉर्टकट बताया था, that is dot. So dot का मतलब है बेसिकली आपके जो भी रेपोज मतलब ये जो आपके फोल्डर्स है, राइट. तो हमारे पास अभी एक ही फाइल है. बट जब आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, ओके, जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वी हैव 1000 और वी कैन से 10 to 15 पेजेस राइट देयर. फाइन. सो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेजेस में चेंज करते हैं, राइट. सो हमें अभी उसको कमिट करना होगा तो वी वोंट डूइंग इट वन बाय वन. तो हम क्या करते हैं उसको बाय मतलब हमने फॉर एग्जांपल समझो 5 से 6 पेजेस में आपने अपडेट किया है, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, 5 से 6 पेजेस का वन बाय वन नाम नहीं लिखेंगे. सो व्हाट वी डू, वी यूज द शॉर्टकट डॉट. डॉट का मतलब है ऑल द फाइल में जो भी हमने चेंजेस किया है, आई वांट टू शिफ्ट इट फ्रॉम दैट इज वर्किंग डायरेक्टली टू अ स्टेजिंग एरिया. मतलब हमारे पार्शियली सेव करना है. फाइन, सो आई विल बी सेइंग डॉट. सो इसका मतलब है हमारा पार्शियली सेव हो गया. नाउ आई विल बी सेइंग गिट commit with hyphen and I can say it's a first commit. Fine. Okay, now it's been saved. Let us see the status now. Okay, so it's been saying on a branch master. Don't worry about this. We'll be seeing this. What is this master and all. Fine. And now it's been saying nothing to be committed, right? So nothing to commit is mean now each and everything is been saved in a Git repository. Till here everyone is cleared. सबको समझा है till here? Yes. Yeah. चलो तो हमने लास्ट का ये भी हमें ये कर दिया था. नाउ लेट अस सी. हमने अभी फॉर एग्जांपल समझो वर्जन 2 का ये कर लिया. ओके, सो आई विल बी राइटिंग. I will write I have wrote the sorry code for version 2. Fine. तो ये वर्जन 1 का कोड था. नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ वर्जन 2 कोड. लेट अस commit this as well. I will say git add dot. ओके, गिट स्टेटस करना जरूरी नहीं है बिकॉज गिट स्टेटस हमें यही समझते हैं कि हमारा फाइल सेव है कि नहीं. एज वी नो कि हमारा सेव नहीं है. सो फॉर दैट रीजन वी वोंट बी यूजिंग द गिट स्टेटस अगेन एंड अगेन. सो आई विल फर्स्ट एड इट गिट एड डॉट देन आई विल कमिट इट. सो गिट commit sorry commit with hyphen m and I can say it's the second commit, right? Okay, let's check the status now. Okay, nothing to commit is been now it been saved. So हमारा सिनेरियो क्या था, सेकेंड वर्जन तक हमारे पास या फाइन नो वरीज. ओके, तो हमारा सेकेंड वर्जन तक कुछ ये नहीं था. अब हम जब सेकेंड वर्जन 3 के लिए कोड करेंगे उसके बाद हमें रिवर्ट बैक करना है टू आ वर्जन 2. ओके, यही एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, ऐसा नहीं कि हम वर्जन 2 से वर्जन 1 में भी जा सकते हैं, बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस एग्जांपल ओनली सो आपको समझने में भी आसान होगा. फाइन. सो हम अभी क्या करेंगे, लेट अस कॉपी दिस कोड फ्रॉम योर एंड इट्स अ आई कैन से आई हैव रोट द कोड फॉर वर्जन 3. Fine. Now what I want, let us save it again. Git add dot. Then I can say git commit with a message. It's a third commit, right? Okay. So हमने कितना commit किया है for now? It's a third commit, right? So before that someone have joined. Okay. So हमने क्या किया, अभी 3 वर्जन बना दिया. अभी हमें क्या करना है, वर्जन 3 से वर्जन 2 में जाना है, राइट. बट हम अभी पहला सिनेरियो देखते हैं, दैट इज हार्ड रिसेट. तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें क्या चाहिए, हमारा जो भी वर्जन 3 के लिए कोड किया था हमें उसको नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट कि हमें जो वर्जन 2 के लिए हमने सिर्फ कोड किया तो वही हमारे पास होना चाहिए, राइट. सो हमें क्या करना है, अभी ये डिलीट हो जाएगा. हाउ कैन वी डिलीट इट, सी पहला आपको वो आईडी का यूज करना होगा, डेट इज गिट लॉक करके आपको कौन से कमिट पर जाना था, हमें कौन से कमिट पर जाना है ऑन द वर्जन 2, राइट. आई विल बी सेइंग गिट लॉक. ओके, सो थर्ड कमिट का ये है, देखो इसका मतलब है आप अभी एक करंट कमिट पर हो, मतलब इस पर हो, थर्ड थर्ड कमिट, राइट. सो इट्स बीन सेइंग हियर एज वेल. ओके, और जो इसके नीचे का होता है उसका प्रीवियस वाला होता है, दिस इज अ कमिट फॉर अ सेकंड वन. गॉट इट. सो ये आपका जो भी ये आईडी दिख रहा है ये वाला, यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस.
ओके, बिकॉज हमें लिखना होता है आपको कौन से कमिट पर जाना है. सो आई कैन जस्ट कॉपी दिस. लेट मी कॉपी इट वंस अगेन. ओके, सो इससे बाहर निकलने के लिए सी इट्स बीन गोइंग इन कंटिन्यूअस लूप. ओके, सो इससे बाहर निकल के लिए आपको क्यू टाइप करना है. क्यू, जस्ट प्रेस क्यू. ओके, इट विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट लूप. ओके, सो हमने अभी ये कोड टाइप ए कर लिया है. फाइन, अभी हमें क्या करना है, हमें गिट रिसेट हार्ड का यूज करके हमें क्या करना है, ये जो भी हमने वर्जन 3 के लिए कोड किया था उसको हमें नहीं चाहिए, इट विल बी लॉस्ट. तो हमारा भी एक थर्ड लाइन है, इट विल बी रिमूव आउट. तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना होता है, यू हैव टू राइट द कमांड गिट, ओके, रिसेट हार्ड हाइफन हार्ड, एंड यू हैव टू जस्ट पेस्ट. मतलब ये थर्ड का था, राइट? सो सेकंड वन इज द बिलो वन, तो हमारा सेकंड वर्जन पर जाना है. सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस कोड एंड वी कैन जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, राइट? तो कमांड का सिंटेक्स क्या है, गिट रिसेट एंड हाइफन हार्ड, और उसके बाद आपको कौन से इस पर जाना है. तो हेड जब इसको ये कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, मतलब समझने का यहाँ पे रिसेंट कमिट है. रिसेंट कमिट मतलब आपका करंट वाला. फाइन, इसका मतलब देखो, इधर आपका ये एग्जांपल के लिए भी आ रहा है. ओके, तो उसके लिए मैंने बोला था जब भी आप कमिट के लिए कमांड्स लिखोगे, सो राइट इट सच दैट कि आपको कमिट जब प्रीवियस कमिट में जाना होगा तो आपको समझ में भी आएगा कि हमने ये वाला जो करंट कमिट किया था वो किसके लिए था, राइट? तो इट शुड बी प्रिसाइज एज वेल. ओके, सो अभी हमें कहाँ पर जाना है, थर्ड कमिट से सेकंड कमिट पर जाना है. तो हमारे पास दिस इज उसके प्रीवियस कमिट का इधर नीचे आपको कोड मिलेगा हमेशा, right? So third commit से second commit पर जाना, तो I have just copied this, right? Copied from here. Git reset hyphen hard, and you just have to copy this code. Okay, तो second commit पर जाना, you just have to copy this code. We call it as ID of an commit. Okay, so we can say the commit ID. तो ये commit आपको ID जो भी commit का है of an second commit, you just have to copy it and you just have to paste it here, right? As soon as I do enter, see it has been disappeared, right? Now just imagine क्या अभी सी अभी आप जब गिट लॉक करोगे ना, सी अभी आपका हेड कहाँ पर पॉइंट करे, सेकेंड कमिट पर. तो इसका मतलब है आपका जो भी कमिट है इट इज बीन डिलीटेड एज वेल. तो डिलीट मतलब आपका वो जो भी आपने कोड लिखा था, ओके, इट इज ऑल्सो बीन रिमूव एज वेल एज आपका कमिट भी डिलीट हो गया. वेर एज आप जब सॉफ्ट रिसेट करोगे ना, तब तब आपका सिर्फ कमिट डिलीट होता है बट कोड आपके पास होता है. फाइन, हैव यू गाइस गॉट इट? जब अभी आप समझो कि आप जब रियल लाइफ एग्जांपल में ये करोगे, वेर यू राइट 1000 to 2000 लाइन ऑफ कोड, सो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम आएगा तो यू कैन जस्ट राइट वन लाइन ऑफ कोड एंड यू कैन जस्ट शिफ्ट टू योर सेकंड वर्जन. इज इट गुड? इज इट अमेजिंग एज वेल? इज इट इंटरेस्टिंग नाउ? समझा? ओके, व्हाई वी यूज गिट रिसेट सॉफ्ट दिस हार्ड, सॉरी, सॉफ्ट का भी एग्जांपल देखेंगे. फाइन, ओके. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा अभी यूज करते हैं हम हमारा सॉफ्ट, और हम क्या करेंगे, वर्जन 2 से वर्जन 1 में जाएंगे. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप दो चीज देखोगे वहां पर, दैट इज द कमिट विल बी डिलीटेड बट आपके पास कोड होगा, राइट? और हम वो कभी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जब अभी आपको समझो कुछ बग्स आ रहे, तो आपको पता है आप उसको इजीली सॉर्ट इट कर सकते हो, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको. तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू डिलीट माय कमिट. ओके, एंड आई वांट क्या जो भी हमने वो वर्जन के लिए किया था, आई जस्ट वांट क्या वो मेरे पास हमेशा हो. फाइन, सो लेट अस डू दैट एज वेल. तो हम हमारा देखते कैसा करेंगे. फाइन, सो सिंटेक्स रिमेन द सेम, सिर्फ आपको ये करना होगा, डेट इज सी अभी ये वापस कंटिन्यूअस लूप में गया, तो आपको अगर इससे बाहर आने का होगा तो कैसा होगा, बाय प्रेसिंग क्यू ऑन योर कीबोर्ड इट विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट लूप. ओके, अभी हमें क्या करना है, सेकंड से 1 में जाना है, बट हमें सेकंड के लिए जो भी कोड लिखा था वो हमारे पास होना चाहिए. ओके, तो जस्ट कॉपी दिस फर्स्ट, आपको फर्स्ट पेयर जाना है, राइट? तो इसका सेकंड के कमिट नीचे वाला इट विल बी फर्स्ट, राइट? जस्ट कॉपी दिस यू आईडी, you can write git reset. ओके, हार्ड अभी देख लिया, हमें सॉफ्ट देखते हैं. ओके, एंड सॉफ्ट एंड जस्ट कॉपी दिस पेस्ट दिस कोड फ्रॉम यू, राइट? तो देखो ये कोड जो मैंने कॉपी किया था एट द रेट एट लास्ट 8146, इट इज 8146, राइट? ओके, एज सुन एज आई प्रेस एंटर, यू कैन सी हमारे पास एक कोड का जो सेकंड वर्जन के लिए हमने कोड लिखा था, इट विल बी देयर विद अस. ओके, तो ये वाला कोड हमारे पास होगा ही होगा. लेट प्लेस एंटर. सी अभी हमारा डिलीट नहीं हुआ. अगर मैं गिट लॉक करूँ अभी, तो आप देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ही ये होगा कमिट. सी वी जस्ट हैव वन कमिट नाउ, राइट? समझा both the uses? Have you guys got it now? Yes, समझा? Is it easy now वर्जन कंट्रोल करना?
ओके अभी मैंने से आपको एक लाइन से दिखाया सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। यही आप 1000 लाइन ऑफ कोड के साथ भी कर सकते हो। यस फाइन। तो हमने अभी क्या क्या सीखा फटाफट बोलो। राइट इन द चैट बॉक्स एंड व्हाई वी यूज दैट। यस हाँ निकिता शर्मा एंड पूनम, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ वन बाय वन। यस git reset hard and git reset soft, right? And what's the difference between both of them? Before that, Nikita and this Poonam, I guess, right? आपको कुछ डाउट है? और you have just raised the hand, आपको समझाया अच्छे से इसके लिए। Hard will delete the code, exactly, fine, and soft will just delete the this, right? मतलब हमारा सिर्फ commit delete करेगा but हमारे पास code होगा ही होगा। Yes, exactly. Okay, right? Is it clear for everyone? Version control करना, is it just one line of code now? Yes. Can you easily able to control your version of your software now? कर सकते हो? Amazing, right? Fine. Now let us see how can we, मतलब हमारे पास एक concept होता है branch, okay, and why we use this branch I will be explaining you that as well. Okay, so let us move to our second concept of today, that is branching. Okay, so now let us assume, okay, and we can, later than this we can erase this. Let us erase this फटाफट से। Fine. Okay, so let us delete this. Okay, now understand what is branching and all, right? So आपने अब तक देखा होगा we have one branch called as master again and again. So it was been saying कि हमारा branch master, okay, there is no any other commit pending in an on a branch master, right? Okay, so हमारे पास एक branch होता है। branch can we say it's like an backbone for us, okay? So अगर आपको version control करना है, okay, तो वर्जन कंट्रोल के लिए आपके पास एक ब्रांच होता है। वो ब्रांच क्या, इसके ऊपर आप वर्जन कंट्रोल करते हो, राइट? तो हमारे आपने देखा होगा जब हम वर्जन 2 में जा रहे थे तो एक ऐसा एक लाइन हो रहा था, दैट लाइन इज वी कैन कॉल इट एज एन ब्रांच फॉर्म। समझा? तो ब्रांच हमें क्या करता है, ब्रांच के यूज से हम क्या कर सकते हैं, हमारा वर्जन कंट्रोल के लिए यूज आता है। फाइन। तो हमारे पास एक मेन ब्रांच होता है दैट वी कॉल इट एज मास्टर ब्रांच। ओके, हमारे पास एक ब्रांच वी कॉल इट एज द मेन ब्रांच वी कैन से इट। ओके, जैसा हमारे पास बैकबोन होता है, ओके, दैट वी कैन कॉल इट द मेन ब्रांच ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली हम जब हम वर्जन कंट्रोल करते हैं तो हमारे पास एक मेन ब्रांच होता है, मास्टर ब्रांच। ओके, बट अभी समझो आपको वर्जन 2 में करना है, ओके, वर्जन 2 का आपको कोड लिखना है, तो आप ये मास्टर ब्रांच पर कभी नहीं करते हो। जो ये ब्रांच लिखा है ना, आप मास्टर ब्रांच पर कभी नहीं करते हो। आप क्या करोगे, आप ना एक नया ब्रांच बनाते हो। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ से नया ब्रांच बनाते हो, ओके, एंड यू कैन नेम इट एज, देखो आप कुछ भी नेम कर सकते हो, यू कैन इवन राइट योर नेम, बट फॉर दिस, मतलब हम फॉर अ बेस्ट प्रैक्टिस, ओके, वी राइट द नेम ऑलवेज एज टेस्ट, बिकॉज हम वहां पर टेस्ट करते रहते हैं हमारा वर्जन कैसा दिखेगा ऑन सेकंड वर्जन एंड ऑल। ओके, हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा ऑन सेकंड वर्जन। तो हम क्या करते हैं, देखो अब ये वर्जन 1 का कोड यहाँ पर है, तो वही कोड पूरा टेस्ट ब्रांच में भी कॉपी हो जाता है, डोंट वरी ऑफ इट। अभी हम क्या करें, हमारा सेकेंड वर्जन का हम हमारा कोड ये कर रहे हैं, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा सेकेंड वर्जन का ये बना रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम मास्टर ब्रांच में नहीं बना रहे, बिकॉज व्हाट व्हाई आई एम सेइंग मास्टर ब्रांच में नहीं बना रहे, बिकॉज जब हमारा वेबसाइट जब आप होस्ट करते हो, इंटरनेट पे करते हो, तो इट विल ऑलवेज बी ऑन योर मास्टर ब्रांच। ओके, ऐसा नहीं आप टेस्ट ब्रांच पे नहीं कर सकते, बट इट विल ऑलवेज प्रीफर्ड कि आप मास्टर ब्रांच पर ही करो आपका दिस। आप जब होस्ट करोगे तो आपका वेबसाइट हमारा मास्टर ब्रांच पर ही होस्ट होता है। फाइन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा मास्टर ब्रांच के साथ कभी छेड़छाड़ी नहीं करते। फाइन, हम क्या करते हैं, जब हमारा वर्जन 2 बनता है आपके वेबसाइट का और आपके सॉफ्टवेयर का, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू डू, आप पूरा कुछ भी हो आप हमेशा टेस्ट ब्रांच पर ही आप काम करते हो। ओके, so अगर कुछ आपको कमिट करने के बाद एरर भी आएगा तो आपके रियल इसमें नहीं दिखेगा, मतलब आपके वेबसाइट जो मास्टर ब्रांच पर होस्ट है उस पर कभी नहीं दिखता। इट विल ऑलवेज बी सीइंग इन योर टेस्ट ब्रांच। ओके, सो फॉर नाउ समझो आपने वर्जन
2, that is version 2 of your website, आपने उसका पूरा कोड लिख दिया, and now you have tested that as well, मतलब आपका पूरा भी टेस्टिंग भी हो गया, now it is being working perfectly fine. So अभी आपको क्या करना होगा, ये जो भी टेस्ट का कोड लिए राइट, उसका आपको मास्टर ब्रांच में अपडेट करना होगा. ओके, सो फॉर दैट आप क्या करोगे, सी वो कैसा होगा, आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड. ओके, फॉर दैट डोंट वरी. तो बिफोर दैट अभी हमें क्या करना है, वर्जन 1 को वर्जन 2 पर, मतलब जो मास्टर ब्रांच है उसको भी वर्जन 2 पे पॉइंट करना है, राइट. सो विल बी जस्ट सेइंग कि आप सी फ्रॉम हियर, राइट, क्या यू जस्ट नाउ द मास्टर ब्रांच विल पॉइंट टू अ वेयर ऑन अ वर्जन 2, राइट. सो यू डोंट वरी, क्या दिस मतलब हाँ वेट एज वेल, अरे यार जस्ट वेट, हाँ guys. Wait has disappeared, so sorry, let me draw it again. Okay, so हमने क्या बोला था, this is what it is. Okay, so this is a master branch, right? Okay, and this is the which branch, we can call it as टेज branch पे जब हमारा version 2 का कर रहे, so we can write it as version 2, right, and this is a version 1, fine. And now what I can say, this is a master branch, right, and for currently it has been pointing to a version 1, right, and version 2 पर कौन point कर रहा है, हमारा टेज branch, as I have said, right. So let me name this branch as an टेज branch. Okay, now सिर्फ समझो कि आपका जो भी टेज ब्रांच पर कोड था वो अच्छे से, मतलब वर्जन 2 के लिए जो भी आप टेज ब्रांच पर कोड लिख रहे थे, इट हैज बीन सक्सेसफुली रिटन, मतलब देयर इज नो बग्स नो एरर. एंड आपको क्या करना है, ये मास्टर ब्रांच इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू वर्जन 1 आपको वर्जन 2 में पॉइंट करना है. सो आप क्या करोगे, जस्ट यू कैन जस्ट अपडेट दिस, तो आपका वर्जन 1 से वर्जन 2 पर आपका मास्टर ब्रांच ये हो जाएगा. तो आपके उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो भी टेस्ट ब्रांच का कोड है इसमें मर्ज करना होता है. तो इट्स जस्ट वन लाइन ऑफ कोड, डोंट वरी. एंड लेटर क्या होगा, हमारा जो भी ये है दैट इज मास्टर ब्रांच विल बी पॉइंटिंग टू दिस वर्जन 2 ऑफ अ वेबसाइट. एंड डोंट वरी, आपका टेस्ट ब्रांच क्या करे, टेस्ट ब्रांच इज नथिंग जस्ट फॉर आर रेफरेंस. ओके, फॉर नाउ अभी आप समझो, अभी आपको वर्जन 3 बनाना है आपके वेबसाइट का. ओके, सो आप क्या करोगे, पहले आप हमारे टेस्ट ब्रांच पर आपका वर्क करोगे. सो फॉर नाउ इट इज अ वर्जन 3, राइट. ओके, सो आई कैन से वर्जन 3. ओके, सो पहला हम क्या करेंगे, हमारा जो भी है राइट, टेस्ट ब्रांच पर हम हमारा कोड लिखेंगे. ओके, देन लेटर हम क्या करेंगे, अगर पूरा अच्छे से आपका लिख के हो गया फाइन, तो आई विल बी सेइंग दिस इज अ टेस्ट ब्रांच ओनली, फाइन. तो दिस इज अ टेस्ट ब्रांच, फाइन. अभी समझो आपका पूरा वर्जन 3 के लिए आपका पूरा कोड लिख के हो गया, राइट. सो फॉर नाउ व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट कि जो भी आपका है मास्टर ब्रांच, नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू अ थर्ड वर्जन. ओके, सो वो कैसा होगा, यू कैन जस्ट मर्ज दिस ब्रांच. ओके, जो जो टेस्ट ब्रांच के लिए कोड है उसको आपको सिर्फ मास्टर ब्रांच पे ये करना होता है, राइट. सो हाउ कैन वी डू दैट, सी इट विल बी जस्ट पॉइंटिंग लाइक दिस ऑन योर थर्ड वर्जन. ओके, so let me write this as a master branch as well. Okay, and now master branch will be pointing to our third version, and हमारा जो भी वेबसाइट है इट विल बी, मतलब आपका पूरा वेबसाइट अपडेटेड हो जाएगा, राइट. सो आप हमेशा किस पर काम करते हो, आप हमेशा टेज ब्रांच पर काम करते हो. और इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक ही ब्रांच बना सकते हो, यू कैन मेक एज मैनी एज ब्रांच यू वांट टू मेक. तो आप कितना भी ब्रांच आपको बनाना चाहते हो, यू कैन मेक इट. ओके, बट इट ऑलवेज सेड कि आप ज्यादा ब्रांच मत बना, बिकॉज आपको ही कंफ्यूजिंग होगा ये ब्रांच हमने क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था. ओके, so it is always preferable to make only one branch. Okay, but you can make as many of branch as you want. Okay, and later you can just merge it with your master branch. Okay, so आपको basic brief, some as you got the basic funda behind this branching, what is this branching and why we require this, have everyone got it? Yeah, sorry for that interruption, वो बीच में थोड़ा गायब हो गया था, राइट. सो वो एक प्रॉब्लम है उसका, क्रोम एक्सटेंशन का, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो बट सबको समझ में आया व्हाई डू वी रिक्वायर ब्रांच एंड हाउ कैन वी डील विद इट. या, सो लेट अस सी द दिस. या Pranati, do you have any doubt? Yeah, Yeah. hi Sandeep. Yes. In case of version 3, version 2 will act as a master branch.
नो नो नो, जस्ट वेट, अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, देखो right. हमारा मास्टर ब्रांच अभी किस पे पॉइंट है, वर्जन 2 पर, राइट? ओके, हम्म, अभी हमें हम्म, क्या करना है, वर्जन 3 के लिए कोड करना है, तो मैंने क्या बोला आपको, हमेशा कहाँ पर कोड करना होगा, तेज ब्रांच पर। हम्म, रीजन क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो हमारा जो कोडिंग विज वेबसाइट है, राइट? सो मास्टर ब्रांच पर अपडेटेड, अगर मैं डायरेक्ट मास्टर ब्रांच पर कुछ भी ऐड करूंगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कोडिंग विज की जगह कुछ दूसरा नाम लिख दिया, फाइन, जस्ट फॉर नाउ समझो कि मेरे को अपडेट करना है, ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दिस कोडिंग विज आई हैव रोट एनीथिंग अदर नेम, ओके, फाइन। सो अगर हम मास्टर ब्रांच पर करेंगे और उसके बाद अगर कमिट करेंगे ना, तो आपके मतलब जो मेन आपका वेबसाइट जहाँ पर होस्ट है, ओके, इट विल बी ऑल्सो बीन अपडेटेड ओवर हियर एज वेल, ओके। तो फॉर एग्जांपल समझो मैं वर्जन 3 बना रहा हूँ, ओके, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वांट क्या मेरे थोड़े वेबसाइट में सिर्फ सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं, हम्म, राइट? ओके, तो मुझे क्या करना है, बटन हटा देना है, ऐसा ऐसा कुछ मुझे चेंजेस करना है, राइट? सो ड्यूरिंग दैट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं मेरे मास्टर ब्रांच पर पहला काम नहीं करूंगा, आई विल बी वर्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन माई तेज ब्रांच, व्हाट इट, जो ये तेज ब्रांच है, फाइन, इस पर मैं वर्क करूंगा। सो उसके लिए मैं जब वर्जन 3 बना रहा था, तो मैं तेज ब्रांच पे वर्क कर रहा था, गॉट इट। एंड वंस आपका जब अभी समझ रहे हैं आपको क्या, मेरा तेज ब्रांच पे जो भी हमने काम किया था वर्जन 3 के लिए, नाउ इट इज बिन मतलब बोल सकते सक्सेसफुली कंप्लीटेड, एंड अभी हमारे पास कुछ एरर्स नहीं, बग्स नहीं, तब हम तभी क्या करते हैं, हमारा जो तेज ब्रांच का कोड है ना, हम उसको मास्टर के साथ मर्ज कर देते हैं, ओके। हम्म, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो मास्टर है, जो V2 पे पॉइंट करता है, दैट इज वर्जन 2, नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू द वर्जन 3, गॉट इट? समझा? ब्रीफ आइडिया दिया, डोंट वरी हम्म। अबाउट इट, जब हम कोड करेंगे तब आपको और थोड़ा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हैव एवरीवन गॉट इट नाउ? प्राणाति, हैव यू गॉट इट? समझा आपको? नहीं, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम अभी लाइक वर्जन 5 या वर्जन 5 या वर्जन 6 पे यस है, यस, नो वरीज, या और हमें फिर वहां से मास्टर ब्रांच मतलब हम लोग का वहाँ पे वर्जन पे कोडिंग हो गया है, हाँ, देयर इज नो एरर और बग बग, इन फाइन, दैट वर्जन, राइट? हम्म, सो अब हमें उसे मास्टर ब्रांच पर स्किल पे मर्ज करना है, मज, तो हम यस। वहाँ पे V2 में करेंगे या V1 में, मतलब नहीं, इसका हम क्या करेंगे काम ना, देखो हम जब हमारा एक हम वर्जन 1 बाय 1 करते हैं, राइट? वर्जन 2 से है। वर्जन 3, वर्जन 3 से वर्जन 4, एंड वर्जन 4 टू वर्जन 5, राइट? राइट, राइट। ओके, तो जब हम वर्जन 3 से वर्जन 4 पे जाएगा, तो हम वर्जन 3 से वर्जन 4 का कोड लिखेंगे, तब हम टेस्ट ब्रांच पर लिखेंगे, हम्म, ओके। फिर वो एक बार कोड सक्सेसफुल होने के बाद, इफ व्हेन वी डोंट गॉट एनी एरर और बग्स, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम हमारा क्या करते हैं, हम हमारा जो भी टेस्ट ब्रांच का ये है ना, हम उसको मास्टर ब्रांच से मर्ज कर देंगे, समझ रहे हो? ओके, ओके। देन लेटर जब आप आपका वर्जन 4 से वर्जन 5 बनाओगे आपके सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का, हम्म, फाइन, हम्म, तो ड्यूरिंग दैट टाइम एज आई सेड, आप हमारे टेस्ट ब्रांच पर काम करोगे, एंड व्हाई आई एम सेइंग टेस्ट ब्रांच इज दैट, जब आपका वेबसाइट डिप्लॉय होता है, ओके, दिस वन, मतलब फॉर एग्जांपल अभी समझो कोडिंग विज का, ओके, हम्म, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो भी होस्टिंग होता है, इट बिन डन ऑन योर मास्टर ब्रांच, ओके। ओके, फाइन। सो आपका मास्टर ब्रांच पर ये होता है, तो फॉर एग्जांपल आपको ना हमेशा हर इस पर ना आपको कमिट करना होता है, ओके, कुछ भी चेंजेस किया था आप, फॉर हम्म, एग्जांपल अभी मैंने थोड़ा चेंजेस किया, अभी आई विल वांट कि मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, सो बिफोर दैट, ओके, आई विल जस्ट कमिट एंड डन, ओके। और वी कैन से अभी आप एक वर्जन नया ला रहे हो, तो उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल छोटा ही वर्जन ए ला रहे हो, तो आप 2-3 दिन का काम करके आप उसको नया वर्जन ला सकते हो, राइट? ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम एट एंड ऑफ ईच डे यू विल बी जस्ट कमिटिंग समथिंग, राइट? ओके, तो भले ही आप तेज ब्रांच पर भी हो, तो तेज ब्रांच पर आप 2-3 दिन काम करोगे, तो आप उस ब्रांच पर भी आप कमिट करते जाओगे, ओके। हम्म, तो आप वेरेस अब समझो आपने तेज ब्रांच बनाया नहीं हो, आप मास्टर ब्रांच पर हो, तो आप मास्टर ब्रांच पर कमिट करते जाओगे ना, तो जो आपका वेबसाइट कहाँ पर भी डिप्लॉयड है, राइट, ऑन योर ब्राउजर, ऑन गूगल, राइट? ओके, तो वहां पर भी आपके वेबसाइट पे दिखाते जाएगा, तो आपको क्या चाहिए, वो वहां पर अभी दिखना नहीं चाहिए, राइट? ओके, सो राइट, राइट। ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या करोगे, आप हमेशा आपका ये ब्रांचिंग तब यूज आता है, मतलब आप क्या ओके, करोगे कि आपका एक ब्रांच बनाओगे, और वो ब्रांच पर आप अपना वर्किंग करते रहोगे फॉर द अदर वर्जन, गॉट ओके, इट? ओके, गॉट इट। या, थैंक यू सो मच। ग्रेट। ओके, सो हम कैसा करेंगे, आई विल बी शोइंग इट आउट नाउ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला कमांड देख लेते हैं, आपको अगर अभी पहला देखना है, डेट इज आपको आपके रेपोजिटरी, ओके, कितने सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, गिट रेपोजिटरी में कितने सारे ब्रांचेस अवेलेबल है, तो पहला आपको अगर लिस्ट ऑफ ब्रांचेस अवेलेबल फॉर यू देखना होगा, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे, डेट इज git git branch, ओके, एंड इट विल लिस्ट डाउन ऑल द ब्रांचेस अवेलेबल इन योर गिट रेपोजिटरी। एज सुन एज आई डू गिट ब्रांच, क्या लिखा है यहाँ पर, कितने ब्रांच अवेलेबल है, जस्ट वन,
ओके, विच इज द मास्टर ब्रांच। तो आपको समझ में आ रहा है जब वो हम कमिट स्टेटस कर रहे थे, राइट, आफ्टर चेंजेस, राइट, तो वहां पर हमेशा ऑन ब्रांच मास्टर लिख के आ रहा था। यस, समझा अभी वो क्यों लिख के आ रहा था गाइस? समझा? ओके, बिकॉज हम कुछ भी चेंजेस कर रहे थे वो इट वाज ऑल बीन डन ऑन अ मास्टर ब्रांच। ओके, फाइन। So now I will be doing it on a other branch, and we can call it that branch as a test branch, right? This will list down all the branches in your git repository. सभी आपको नया ब्रांच बनाना, तो आपका उसके लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे? एंड द सिंटेक्स फॉर गोइंग मेकिंग न्यू ब्रांचेस, git git लिखना है, देन ब्रांच, एंड आफ्टर दैट आपको लिखना है वो ब्रांच का नाम। तो हमने अभी कौन सा एग्जांपल के लिए लिया था? ब्रांच नेम वाज द टेस्ट, राइट? ओके, सो विल बी मेकिंग यूज ऑफ दैट टेस्ट ओनली। तो आपको पहला कमांड क्या होगा? गिट ब्रांच, और आपको ब्रांच का नाम लिखना है, आपको जो ब्रांच का बनाना है। तो सब मैंने कौन सा ब्रांच बनाया है? तेज ब्रांच। एज सुन एज आई डू एंटर, देखो कुछ नहीं हुआ। अभी हम देखते हैं हमारे रेपोजिटरी में कितने सारे ब्रांच बने हैं। तो एज सुन एज आई डू गिट ब्रांच, एनीवन विल एक्सपेक्ट द रिजल्ट आउट हियर? कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कितने ब्रांच हो गए हमारे पास अभी? यस, अब राइट। ओके, एंड विच ऑल ब्रांच विल बी हैविंग नाउ? फटाफट से, which all branches will be having? 2 is the correct answer, taste and master, right? Amazing, right? So you are on the way, समझ रहे हैं आपको? तो see, as soon as I do git branch, कितने branches है? master and test. As you all said, we will be having 2 branches, right? हाँ, someone have raised the hand, master and test, right? No worries. Okay, now अभी आप इसमें समझो, ये जो ग्रीन कलर इंडिकेट क्या कर रहा है? ग्रीन कलर इंडिकेट दैट अभी आपका जो भी कोड हो रहा है वो मास्टर ब्रांच पर हो रहा है, राइट? हाँ, someone have said something. हाँ, हाँ आदित्य, हाँ, कुछ डाउट है आपको? सर वो ब्रांचेस वाला टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करो ना। हाँ, फाइन। सो देखो, ब्रांचेस मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ओके, सो फॉर नाउ समझो, रुको मैं हटा देता हूँ। दैट इज मतलब हम वर्जन 2 तक ही करते हैं। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? जब आप वर्जन 1 बना रहे हो तो आप डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में बना रहे थे, राइट? मतलब आपका वर्जन 1 हो गया, अभी कंप्लीटेड, आपने होस्ट कर दिया है, ओके, एंड डिप्लॉयड इट ऑन अ गूगल, फाइन। लेटर जब आप वर्जन 2 बनाओगे तो आप मास्टर ब्रांच पे नहीं बनाते। द रीजन बिहाइंड दिस, कौन सा भी आप वेबसाइट ले लो, ओके, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल इफ आई से हॉटस्टार, ओके, सो यहाँ पर भी आपका जो भी कोड लिखा होगा वो मास्टर ब्रांच पर होगा, बट कुछ भी अगर उनको नया फीचर लाना होगा, सो दे विल ऑलवेज डू ऑन द तेज ब्रांच। ओके, वो ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है, बट उन्होंने कौन सा भी ब्रांच बनाया होगा वो वहां पर पहले उसका टेस्टिंग करते होंगे, फाइन। तो हम क्या करते हैं? हम मास्टर ब्रांच पर कोड नहीं करते, हम तेज ब्रांच के लिए कोड करते हैं फॉर अ वर्जन 2। जब हमारा पूरा कोडिंग हो जाता है वर्जन 2 के लिए, और अभी हमें लग रहा है कि हमारा पूरा अच्छे से सक्सेसफुल है, देयर इज नो एरर्स नो बग्स, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या कर देते हैं? जो भी टेस्ट में कोड लिखा होगा हमें इसको मर्ज करना है, तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, राइट? क्या हमें मास्टर में जाके हम हमारा कोड कॉपी करके वहां पर पेस्ट करें? हम वैसा नहीं करते, हम एक ही लाइन का कोड लिखते हैं। दैट इज हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिर्फ ये टेस्ट ब्रांच का इसमें मर्ज करना होता है, फाइन। एंड हाउ कैन वी डू दैट? वी विल बी आल्सो सीइंग दैट, डोंट वरी। सो फॉर नाउ अभी समझो कि हम ये मास्टर को हमारा अपडेट करते हैं। नाउ मास्टर विल बी पॉइंटिंग टू अ वर्जन 2, ओके। सो ड्यूरिंग दैट टाइम हम ब्रांच इसलिए बनाते हैं सो दैट हम जब हमारा वर्जन बनाते हैं इन फ्यूचर फॉर आवर सॉफ्टवेयर, सो दैट हम हमारा मास्टर ब्रांच हमेशा सेफ रखेंगे, राइट? सो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आप टेस्ट ब्रांच बनाते रहते हो, वहां पर आपने आज के दिन पूरा कोड किया, राइट, और बट उसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे, तो अभी आपका दिमाग पूरा ये हो गया, राइट, बट आपको अभी क्या करना है? टेस्ट ब्रांच पर आपने कोड किया, राइट, तो आप क्या करोगे? आपका प्रीवियस कमिट पर जाओगे जो आपने कल किया था। ओके, फॉर एग्जांपल समझो, मैं अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो मैंने कल रात को पूरा कोड किया था, वहां पर पूरा अच्छा चल रहा था, बट मैंने आज सुबह से जो कोड किया अभी तक शाम तक, वहां पर बहुत सारे एरर्स आ रहे, ये आ रहे, बग्स आ रहे। तो मैं अभी टेंशन में आ गया, तो मैं क्या करना चाहता हूँ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो भी आज का पूरा दिन का लाया एक कोर्स है मुझे हटा देना है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे को क्या करना है? प्रीवियस कमिट पर जाना है, राइट? सो मैं क्या करूंगा? आई विल बी यूजिंग द कमांड गिट रिसेट हार्ड। ओके, सो मैं मेरे कल के कोड पे चला जाऊंगा, राइट? वेर जो आपका मास्टर ब्रांच है वो हमेशा सेफ रहेगा वहां पर। ओके, सो आप कभी भी जो भी कोड अवेलेबल हो आपके मास्टर ब्रांच पे
उसके साथ आप खेलोगे नहीं. फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग द ब्रांचेस कॉन्सेप्ट over here. Have you guys got it now? समझा आपको? ब्रीफ आइडिया मिला आदित्य? Yes, sir. Clear. ग्रेट. सो अभी हमें पहला मैंने एक कमांड लिखा है दैट इज गिट ब्रांच. गिट ब्रांच से हमें क्या मिलता है? लिस्ट ऑफ ब्रांचेस आपने अब तक बनाया है. ओके, से मास्टर ब्रांच हमेशा होता है. ओके, बाय डिफॉल्ट ये आपका मास्टर ब्रांच होता है. इट इज एक्ट लाइक एन दिस बैकबोन फॉर अस. सर्वेश, या कुछ डाउट है आपको? यस, हाँ, सेम. मेरा एकदम स्मॉल डाउट है, छोटा सा। यस. जो अपना मास्टर ब्रांच है ना, उसके अंदर सब आएंगे, जैसे टेस्ट ब्रांच और नया बनाते जाएंगे नहीं हम नहीं, लोग, वो उसके न्यू अंदर एक्ट। नहीं आते. हम अलग अलग ब्रांच बनाते रहते हैं. डोंट वरी, ये अच्छा, उसके सब अंदर नहीं आते. सेपरेटली होता है। सेपरेट सेपरेट उसके अंदर, मास्टर के ओके अंदर नहीं बनते. मास्टर के सब बाहर बनते हैं. समझ रहे हो? ओके ओके तो अभी समझो ओके, आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अलग अलग ब्रांच बनेगा. फाइन. गिट फाइन। रेपोजिटरी में पूरा एक एक ब्रांच बनता है. ओके, ओके सो ओके, अभी हम गिट सेपरेटली ब्रांच से, बनता है। यस यस, राइट. ओके, सो अभी गिट ब्रांच से हम यही देखते हैं कि आपके रेपोजिटरी में अब तक कितने ब्रांचेस अवेलेबल है. तो हमने पहला कुछ ब्रांच नहीं बनाया था, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्रांच अवेलेबल था, दैट इज अ मास्टर. राइट. फिर इसके बाद हमने एक ब्रांच कैसा बनाते वो देखा बाय यूजिंग द कमांड गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम लिखना होता है. तो हमने अभी कौन सा ब्रांच बना रहे हैं? टेस्ट ब्रांच. ओके, तो इसके बाद हमें कुछ आउटपुट नहीं आया था इधर टर्मिनल पे. ओके, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देख रहे थे कि हमारे पास अभी कितने ब्रांचेस अवेलेबल है. तो गिट ब्रांच किया तो हमारे पास अभी कितने अवेलेबल हो गए? 2. रीजन बिकॉज उसके प्रीवियस लाइन में हमने एक ब्रांच बनाया, डेट इज स्टेज ब्रांच. राइट. तो अभी हमारे पास कितने, दिस वी हैव द 2 ब्रांचेस. ओके, एंड दिस ग्रीन सिग्नल सिंप्लिसाइज, मतलब जो ग्रीन कलर आपका जो भी ब्रांच है वो हाईलाइट हो रहा है, उसका मतलब होता है आप अभी करंटली ये ब्रांच पर हो. तो अभी आप कुछ भी चेंजेस करोगे, आप अपने मास्टर ब्रांच पे चेंजेस करोगे. बट मैंने क्या बोला, जब आप वर्जन 3 के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल वर्जन 2 के लिए ही कर रहे हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या, हमें क्या करना है, हमें मास्टर 2 पे हमें वर्क नहीं करना है. राइट. हमें कहाँ पर वर्क करना है? टेस्ट पर. तो अभी हमें मास्टर टू टेस्ट पर आना होगा. तो वो कैसे आ सकते हैं? द कमांड गोज गिट चेकआउट, और आपको कौन से ब्रांच पर आना है? तो मुझे कहाँ पर आना है? टेस्ट ब्रांच पर आना है. तो आई विल बी सेइंग गिट चेकआउट टेस्ट. ओके, सो नाउ इट बीन सेइंग स्विच टू द ब्रांच टेस्ट. राइट. एंड एज सुन एज आई डू गिट ब्रांच, अभी आप देखोगे जो ग्रीन कलर का हाईलाइट था, इट हैज बीन शिफ्टेड टू द टेस्ट ब्रांच. समझा? हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर कैसा शिफ्ट कर सकते हैं? यस गाइस, समझा? यस. इसके लिए मैं स्लोली एंड स्टेडीली समझा रहा हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, वन बाय वन लाइन. या ग्रेट. ओके, अभी हमने कहाँ पर स्विच कर लिया? हम हमारे टेस्ट ब्रांच पर स्विच कर लिया. राइट. देखो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया, उसका मतलब है हम अभी टेस्ट ब्रांच पर है. राइट. तो इससे हम समझ में भी आ रहा है क्या, स्विच टू द टेस्ट ब्रांच. उसके बाद हमने अगर देखना भी है कि सच में हुए कि नहीं, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो, गेट ब्रांच. तो इससे आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, हमने सच में टेस्ट ब्रांच पर अभी है. ओके, नाउ अभी मैं वर्जन 2 के लिए, तो आई विल राइट आई हैव wrote code for टेस्ट ब्रांच. ओके. ओके, अभी मैंने टेस्ट ब्रांच के लिए जो भी कोड था वो लिख दिया. अभी मेरे को क्या करना है? पहला आपको हमेशा सेव करना होगा. तो आई विल बी राइटिंग द गिट एड डॉट एंड गिट commit. I will be saying commit on which branch? I will be saying टेस्ट branch. Right. ओके. अभी आप यहाँ पर एक जादू देखोगे, as soon as I move on the master branch, वो आपका ये लाइन कोड होगा ही नहीं वहां पर. ओके, अगर मुझे अभी टेस्ट ब्रांच से मास्टर ब्रांच पर जाना होगा, तो एनीवन ओवर हियर बोल सकता है क्या कमांड होगा? अमेजिंग. गिट चेकआउट. ओके, सो आप लिखोगे गिट चेकआउट, और आपको कौन से ब्रांच पर जाना है? अभी मास्टर ब्रांच पर. So as soon as I go on the master branch, I write a command git checkout. I want to go on the master branch. As soon as I enter, आप देखोगे ये जो लाइन लिखा था मैंने टेस्ट ब्रांच का, वो डिसअपियर हो जाएगा. इट हैज बीन डिसअपियर्ड एज वेल. ओके, टेस्ट वाला भी डिसअपियर्ड हो गया. ओके, वो देखते हैं हम why is it so. बट हमने देखा as soon as we have moved on to a master branch, वो क्या किया? हमारा जो भी ये था, it has been disappeared out. ओके, एंड whereas हमारा वहां पर एक ये भी चेंजेस हुआ, डेट इज हमारा सेकेंड लाइन भी चेंजेस, मतलब डिलीट हुआ. डिलीट नहीं हुआ,
मास्टर ब्रांच पे अवेलेबल नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट वाज, जब आपका जब कर्सर सेकेंड लाइन पर था, उसके बाद आपने क्या किया, उसको थर्ड लाइन पर किया एंटर से, राइट। सो क्या किया, सेकेंड लाइन पर भी अपडेट किया, समझ रहे हो। सेकेंड लाइन पर हमने एंटर किया तो उसको अपडेट किया, और थर्ड लाइन पर भी किया, तो हमारे पास गिट टेस्ट ब्रांच पर कितना अपडेट हुआ, 2 लाइन का अपडेट हुआ। तो उसके लिए दैट्स द रीजन वो दोनों लाइन हमारे कहाँ पर मूव हो गए, टेस्ट ब्रांच पर। अभी आपको देखना है वो टेस्ट ब्रांच पर अवेलेबल है क्या, तो आप लिखोगे गिट चेकआउट, अगेन यू विल बी गोइंग ऑन द, बट इफ बिफोर दैट लेट अस सी कि हम हमारे कौन से ब्रांच पर है। वी आर ऑन द मास्टर ब्रांच, राइट, एंड एज सून एज आई डू गिट चेकआउट टेस्ट, सी हमारे पास दोनों पूरा कोड है, समझा, हैव यू गॉट इट नाउ, यस गाइस, समझा, ओके। अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा कंसर्न क्या है, मुझे वर्जन मतलब टेस्ट ब्रांच पर मैंने पूरा अभी कोड लिख चुका हूँ, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे उसको मर्ज करना है, विथ whom आई वांट टू मर्ज इट विथ एन मास्टर ब्रांच, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर, पहला आपको क्या स्टेप करना होगा, अभी आप कौन से ब्रांच पर हो, लेट्स सी, गिट ब्रांच टेस्ट ब्रांच पर हो। सो आप जो भी ब्रांच को मतलब आपको कहाँ पर मर्ज करना है, आपको मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, राइट। सो आप पहला वो ब्रांच पर जाओगे, जब आप मर्ज करना चाहते हो ना, तो पहला आपको कौन से ब्रांच को, मतलब आपको अभी मास्टर ब्रांच में मर्ज करना है, ओके। तो पहले आपको लिखना होगा गिट, मतलब आपको वो ब्रांच पर जाना है, तो मैं पहला लिखूंगा आई विल बी गोइंग ऑन द मास्टर ब्रांच, देखो गिट चेकआउट मास्टर, ओके। तो हम अभी कौन से ब्रांच पर है, हमारे मास्टर ब्रांच पर है, राइट। एंड मुझे अभी कौन सा ब्रांच को मर्ज करना है, अभी देखना है आपको मास्टर ब्रांच पर है क्या नहीं, तो कैन जस्ट चेक इट बाय दिस, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, मुझे टेस्ट पे कौन सा भी जो भी कोड था, मुझे वो मास्टर में भी अवेलेबल होना चाहिए, राइट। सो आई विल बी राइटिंग गिट मर्ज, and which branch I want to merge, I want to merge the test branch, okay। so now जो भी टेस्ट ब्रांच पे हमने कोड लिखा होगा, it will be updated in my master branch as well। तो as soon as I write git merge test, okay, तो टेस्ट का मतलब है मुझे अभी ये जो भी टेस्ट ब्रांच पर जो भी मैंने कोड लिखा, आई जस्ट वांट टू अपडेट इट ऑन माय मास्टर ब्रांच। तो हमारे मास्टर ब्रांच पर आप देख सकते हो सिर्फ एक लाइन का कोड है, बट as soon as I do this, सी हमारे पास अभी ये भी आ गया। हैव एवरीवन गॉट इट, कैसा हमने मर्ज किया, यस, समझा सबको, ओके। हम हमारा भी एक और एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, हम हमारा वर्जन 3 के लिए करते हैं, ओके, टेस्ट ब्रांच पर, फिर उसके बाद हम हमारे मास्टर ब्रांच को उसको अपडेट कर लेते हैं, ओके। सो इसके वजह से आपको और अच्छे से समझ में आसानी होगी, गॉट इट। सो अभी समझो, आप अभी मैं क्या बोला, पहले आपको देखना होगा, आपको जब आप नया वर्जन के लिए करते हो तो आप ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले टेस्ट ब्रांच पर हो। तो आई विल बी सेइंग आई एम ऑन द मास्टर ब्रांच, आई वांट टू गो ऑन माय टेस्ट ब्रांच, आई विल बी सेइंग गिट चेकआउट टेस्ट, okay, so now it been saying switch to the branch test। अगर आपको सच देखना है हुआ है कि नहीं, तो आई कैन जस्ट चेक बाय यूजिंग द कमांड git branch। so ग्रीन कलर से इंडिकेट क्या होता है, आप अभी हमारे टेस्ट ब्रांच पर हो, okay। now I am writing the code for the version 3, okay। so I will say I am writing the code for version 3, right। now हम हमारे पहला सेव कर लेते हैं, ओके। सो ये हमेशा आपको करते ही जाना है, okay, git add all and git commit, okay। I can say the second commit on page branch, fine, it's been saved, so okay। now let us see हमारा master branch कैसा है, तो I will be saying git checkout master, I want to go on my master branch, देखो वो हट गया, right। अभी मुझे क्या करना है, हमें जो भी हमने कोड लिखा था, ओके, कौन सा कोड लिखा था, लेट अस गो ऑन द टेस्ट ब्रांच अगेन, ये वाला कोड लिखा था, आई वांट टू मर्ज इट विथ माय मास्टर ब्रांच, राइट। तो अभी हम कौन से ब्रांच पर है, फटाफट से ब्रीफ कर देते, टेस्ट ब्रांच पर है। तो अगर मुझे मर्ज करना है मास्टर ब्रांच पर, तो मुझे क्या करना होगा, पहला मास्टर ब्रांच पर जाना होगा। सो आई विल बी सेइंग गिट चेकआउट, लेट मी गो ऑन माय मास्टर ब्रांच फर्स्ट, राइट। हो गया, हम हमारे मास्टर ब्रांच पर गए, अभी हमें क्या करना है, हमारा टेस्ट ब्रांच का मर्ज करना है। तो आई विल बी सेइंग गिट प्लीज मर्ज माय टेस्ट ब्रांच विथ अ मास्टर ब्रांच, समझ रहे हो। तो आई विल बी सेइंग गिट मर्ज टेस्ट, तो उसका मतलब है आपको कभी मास्टर ब्रांच के साथ अभी आपको टेस्ट का जो भी कोड लिखा था उसको अपडेट करना है,
ओके, तो जो भी आपने टेस्ट ब्रांच के लिए कोड लिखा था अपडेट हो जाएगा आपके मास्टर ब्रांच में, इज बीन अपडेटेड। ये ऐसा ही नहीं है आपको एक ही फाइल में अपडेट करना होगा, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल समझो 5 to 6 इसमें भी ये किया है तो वो पूरा आपका अपडेट हो जाएगा आपके इस पर भी, मतलब आपके मास्टर ब्रांच पर भी अपडेट हो जाएगा। समझ में आया? हैव एवरीवन गॉट इट नाउ? यस, इज इट क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन नाउ? समझा सबको अच्छे से? यस, ओके। सो लेट अस रिवाइज द थर्ड कॉन्सेप्ट जो हमने आज सोचा था, विच वाज द गिटअप वाला। ओके, गिटअप इज नथिंग, इट्स एन जस्ट एन क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? ओके, तो जब आपको आपका जो भी कोड अवेलेबल है, यू वांट टू मेक इट अवेलेबल ऑन ए क्लाउड, क्लाउड मतलब ऑन एन इंटरनेट। ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको अभी समझो आपके फ्रेंड को कोड आपको ये करना है, सो आप क्या करोगे, आपके पीसी खोल के आप हमेशा ये नहीं करते रहोगे, राइट? जिप फाइल करके आप हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर उसको मेल नहीं करोगे। एक साथ कितना कोड मर्ज कर सकते हैं? हाँ, यू कैन मर्ज 1000 लाइन्स ऑफ कोड, 1000 लाइन ऑफ वी कैन से, हाँ 5, मतलब आप 100 फाइल्स भी एक साथ अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन ऐसा ही करना है। मैं आपको फॉर नाउ आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं एक एक लाइन करके समझा रहा था, तो आपको अच्छे से समझ में आए। गॉट इट सर्वेश? या, so should we move with GitHub क्या होता है? should we move on to that concept now? Yes, others apart from Jay? Yeah, fine. So हम हमारे देखेंगे GitHub क्या होता है। ओके, सो लेट अस erase this। सो अभी आपको समझो ये आपका ये है विच इज योर लोकल स्टोरेज, दैट इज योर पीसी, राइट? आप हमारा आपका प्रोजेक्ट क्या करते हो, यहाँ पर बनाते हो, राइट? बट अभी आपको क्या करना है, इट शुड बी अवेलेबल ओवरऑल टू द, अभी आपको किसको भी शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, बट हमेशा आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि आपको हमेशा जिप फाइल करके आपका फोल्डर उसको भेजते जाना है। तो आप क्या करते हो, यू मेक द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज गिटअप। ओके, सो आप क्या करोगे, आपका जो भी ये है ना फाइल गिटअप पर स्टोर करोगे। ओके, सो जस्ट this is one GitHub, you can ask this is, right? GitHub is nothing but it help us to store our data on internet first of all। ओके, आप दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये करो। तो GitHub क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ भी डेटा हो सके, नॉट ओनली प्रोजेक्ट, अभी समझो आपको फोटोज भी आपको अभी सेव करना है। ओके, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप GitHub यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो, और यू कैन से इमेजेस आपका सेव कर सकते हो ऑन द GitHub। Got it? And whereas the second use of using the GitHub is that GitHub is for cloud storage। जब हम हमारा पीसी में काम करते हैं तो इट इज फॉर द लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज मतलब ये वो सिर्फ आपके पास ही अवेलेबल होता है, राइट? अगर आपको किसको दूसरे को भेजना होगा वो प्रोजेक्ट, आप क्या करोगे, आपका पहला पीसी ने तो लैपटॉप ऑन करते हो, ओके, देन लेटर आप क्या करोगे, उसको जिप करके आप हमारे मेल कर देते हो, राइट? ओके, बट मुझे क्या करना है, वो सब अभी झंझट चाहिए नहीं। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मैं उसको क्लाउड पर पुश कर दूंगा, और कहाँ पर भी बंदा हो, ओके ओके, इट शुड बी बिसाइड, मतलब नेक्स्ट टू माय डोर, मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में रहता हो, ओके, और एल्स ही और शी स्टेज इन दुबई, यूएसए, वेरेवर द पर्सन स्टेइंग, ओके, वो सिर्फ एक लाइन वो हमारा जो भी है यूआरएल है, वो सिर्फ वो कमांड कॉपी करके हमारे उसके खुद के डिवाइस में हमारा प्रोजेक्ट भी खोल सकता है। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी समझो एक रेपोजिटरी बनता है। ओके, तो गिटअप पर हमारे पास अलग अलग रेपोजिटरी होता है, और रेपोजिटरी मैंने क्या बोला आपको, रेपोजिटरी इज नथिंग बट इन एन सिंपल वर्ड वी कैन कॉल इट एज फोल्डर। बट आप जब आप डेवलपमेंट करते हो, ओके, सो ड्यूरिंग इन अ कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी ऑलवेज कॉल्ड दिस फोल्डर एज एन रेपोजिटरी। समझ रहे हो? तो गिटअप पर क्या करते हैं, आप पहला रेपोजिटरी बनाते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप हमारा जो भी आपका कोड है वो इसके अंदर स्टोर कर देते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, जो भी लोकल स्टोरेज से मुझे कहाँ पर पुश करना है, इनटू एन क्लाउड स्टोरेज, राइट? तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, गिट का कमांड यूज करके हम हमारा लोकल स्टोरेज से गिटअप पर दैट इज ऑन द क्लाउड स्टोरेज पुश कर सकते हैं। और एक बार आप क्लाउड स्टोरेज पे पुश कर दिए, नाउ इट इज अवेलेबल लाइफ टाइम। सिर्फ आपको यहाँ पर जो अकाउंट पर है वो अकाउंट पर आपका जो भी स्टोरेज है इट विल बी देयर विथ यू लाइफ टाइम। सो गिटअप का ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, कुछ नहीं, इट विल बी देयर फॉर यू एज एन लाइफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझो इस पर जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो,
ओके। एंड अभी आपने कोई सा प्रोजेक्ट बनाया बट आपने उसको आपके रेज्यूमे नहीं तो सीवी में भूल गए, ओके। बट वाइल गिविंग द स्पीच टू एन इंटरव्यूअर आपने बताया कि मैंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, बट आपने as soon as the interviewer said to show you, आप भूल ही गए कि आपके इस बार है ही नहीं, ओके। सो ही इज बीन सेइंग कि आप उसके सिस्टम पर वो आपका प्रोजेक्ट रन करके बताओ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये इधर जो भी आपका रेपोजिटरी का है वो लिंक को कॉपी करोगे, वो लिंक को कॉपी करके जो भी हमारा प्रोजेक्ट है ना उसको आप क्या करोगे, अभी समझो ये इंटरव्यूअर का पीसी है, ओके। यहाँ पर आप उसका क्लोन करते हो। क्लोन का मतलब होता है कॉपी आके आपके मतलब सॉरी जस्ट वेट, ओके। सो आप क्या करोगे, जो भी आपका ये है इंटरव्यूअर उसके डिवाइस पर आप क्या करोगे, क्लोन करोगे, ओके। एंड वो क्लोन करने के बाद आप अपना यहाँ पर रन कर सकते हो, ओके। सो उसके बाद आप अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पर आप उसको ओपन करके रन करके बता सकते हो, ओके। सो गिटअप क्या किसके लिए स्टोर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी लोकल स्टोरेज है वो आपका क्लाउड पर होगा, क्लाउड मतलब इंटरनेट पर अवेलेबल होगा, और आपको हमेशा आपका सिस्टम कैरी करना जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज में हो या आपके ऑफिस में हो, ओके। एंड इज दे मतलब आपका कोई स्टूडेंट मतलब आपका कोई फ्रेंड होगा, ही इज बीन रिक्वेस्टिंग यू क्या सिद्धेश प्लीज डू सेंड मी द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डेवलप, ओके, इन लास्ट मंथ, ओके। तो लास्ट मंथ में जो आपने प्रोजेक्ट किया था मुझे कैन यू जस्ट फॉरवर्ड इट टू मी, सो मैं उसको क्या बोलूंगा, आई वोंट बी फॉरवर्डिंग यू द फोल्डर, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, यू कैन जस्ट कॉपी दैट लिंक, आपका टर्मिनल खोलो, आपको मैं कमांड बोलता हूँ, वो कमांड आप जैसे आप टाइप करोगे ना आपके सिस्टम पर मेरा फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा, okay, fine. So using this we can easily able to shift our code from local storage to cloud storage, and now it will be available with us lifetime। तो अगर आपका लोकल स्टोरेज मतलब आपके अगर पीसी में समझो आगे जाके कुछ वायरस भर गया, ओके, और एल्स आपका लैपटॉप पूरा जुना हो गया, तो अभी आपका क्या करना है, उसको फॉर्मेट करना है, राइट, सॉफ्टवेयर मारना है, ओके। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या करोगे, आपका पूरा फाइल वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो आप क्या करते हो, आप ड्यूरिंग दैट टाइम आप हमारे लोकल मतलब आपके लोकल स्टोरेज में जो भी फाइल था आप क्लाउड स्टोरेज में पहले से भर के रखे रहोगे, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है, क्या करोगे आप वापस आपका जो भी है उसको आपके इसके अंदर आपके जब समझो आपने नया लैपटॉप लिया तब आप क्या करोगे, जो भी इधर फाइल से अब आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से वापस आपके सिस्टम में फैच कर सकते हो, समझा, वाई वी यूज दिस, या राइट सर्विस गिट क्लोन करते हैं, सबको समझा गिटअप का बेसिक फंडा, वाई वी यूज इट, ओके। गिटअप कुछ आपको कोडिंग लैंग्वेज नहीं है जैसा हम गिट का है, सब गिटअप का एक अलग कुछ लैंग्वेज नहीं है, ओके। गिटअप हमारे पास इसके लिए यूज आता है सो डैट हम हमारा जो भी है हम उसको क्लाउड स्टोरेज पर हम हमारा सेव कर सकते हो, ओके। और अगर हमें बाद में कभी यूज करना है तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं, ओके। और बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट फॉर नाउ इतना समझो कि अगर आपको जो भी आपका लोकल स्टोरेज पे जो भी आपका प्रोजेक्ट है अगर उसको आपको क्लाउड स्टोरेज पर डालना है, ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज गिटअप, ओके। एंड वो गिटअप से आप ये कर सकते हो, यस एग्जैक्टली, स्टोर करने के लिए भी काम आता है वेरेस, और बहुत सारे भी है, बट फॉर नाउ अभी एक इजी के लिए आप समझो कि स्टोर करने के लिए काम आता है इन सिंपल वर्ड, ओके। वेरेस अभी आप समझो एक आप क्या करते हो ना, एक आपका ये बनाते हो, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ फॉर नाउ, ओके। इट्स बिन कॉम्प्लिकेटेड तो उसके लिए मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ओके। एक क्या करते हो ना आप अपना एक ये करते हो, एक आपका रेपोजिटरी बनाते हो, जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था फ्यू मतलब इन लास्ट लेक्चर, क्या हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्ट को अगर हमें 3 से 4 बंदे लोग की टीम में अगर डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं एक रेपोजिटरी पहला हम इधर बना देते हैं, कहाँ पर बना देते हैं, हमारे इस पर गिटअप पर, और वो गिटअप पर ना वी कॉल इट एज कोलैबोरेटर, कोलैबोरेटर मतलब हम हमारे वो प्रोजेक्ट के इसमें और किसको ऐड करना चाहते हैं एज माई टीम मेंबर सो दैट इवन दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स माई प्रोजेक्ट एज वेल, ओके। सो हम क्या करते हैं वो बंदे का हम सिर्फ यूजर नेम डालते हैं, और वो यूजर नेम को जब हम एड एज कोलेबरेटर करते हैं तो वो कोलेबरेटर फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ एंड मैंने सर्वेश को भेजा है कि आई वांट यू टू एक्ट मतलब आप मेरे प्रोजेक्ट पर मुझे कंट्रीब्यूट करो फॉर मेकिंग मी एन अबाउट पेज, तो मैं सर्वेश को बोलूंगा कि सर्वेश जस्ट ओपन योर गिटहब अकाउंट, मैंने आपको कोलेबरेटर का रिक्वेस्ट भेजा है, गॉट इट। सो सर्वेश क्या करेगा, सर्वेश अपना गिटहब अकाउंट पर जाएगा और वो अपना मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करने के बाद अभी उसके पास भी एक्सेस आ गया मेरे प्रोजेक्ट का, ओके। तो अगर वो भी उसके सिस्टम में कुछ भी चेंजेस करता है, पहला वो क्या करेगा, पहला वो जो भी हमारा फोल्डर है उसको पहला अपने सिस्टम पर लेके आ जाएगा, इट विल बी जस्ट क्लोनिंग माय दिस
project, and later वो क्या कर सकता है, he will just make his contribution towards my project. Okay, so मैंने उसको क्या बोला था, या फाइन. ओके, सो अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड बोलूं, गिट एंड गिटअप क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोलना है आपको. ओके, सो गिट इज फॉर लोकल स्टोरेज, राइट, एंड वेयर एज गिटअप इज फॉर क्लाउड स्टोरेज, राइट. सो गिट क्या होता है, गिट से हम कमांड्स लिखते हैं. ओके, गिट पर हम कमांड लिखते हैं, और गिट से कमांड से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स के कोड्स होते हैं हम उसको गिटअप पर पुश करते हैं. सो गिट वी कैन कॉल इट एज एन सॉफ्टवेयर, एंड गिटअप एक हमें सर्विस देता है. ओके, गिटअप हमें क्या करता है, हमें एक सर्विस देता है. सो हमें क्या करता है, कौन सा सर्विस देता है, इट्स, हाँ जस्ट या भारती, कुछ आपको डाउट है और पूछना है. हेलो, हाँ आपको कुछ ये करना है, यू हैव रेज्ड योर हैंड. फाइन, लेट अस कंटिन्यू. ओके, सो अगर मुझे गिट एंड गिटअप का ये करना होगा, सो इन एन सिंपल वर्ड आई कैन से गिट इज फॉर लोकल स्टोरेज एंड गिटअप इज फॉर क्लाउड स्टोरेज, फॉर सेविंग माय प्रोजेक्ट ऑन एन क्लाउड. ओके, अगर एंड गिट इज एन सॉफ्टवेयर एंड गिटअप इज एन one service. Okay, so it just provide us service, okay, for hosting, or we can say hosting our जो भी project folder on an cloud. Got it? फाइन. एंड वी कैन से गिट से हम क्या लिखते हैं, कमांड्स लिखते हैं. ओके, एंड गिटअप के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स नहीं होते. ओके, गिटअप इज जनरली लाइक एन यूजर इंटरफेस, और वी कैन से एन ग्राफिकल इंटरफेस दैट हेल्प अस टू ब्रिंग अ प्रोजेक्ट ऑन एन क्लाउड. गॉट इट? इसके ऊपर अगर आपको और कुछ चाहिए होगा, हाँ एग्जैक्टली, गिटअप, गिटअप क्या करेगा, गिटअप बेसिकली आपको कोलैबोरेटर ऐड करने में हेल्प करेगा, एंड ड्यू टू विच आप more than one people can easily able to work on a single project. ओके, इंडिपेंडेंटली वो एक ही सिस्टम पर काम नहीं होगा, इट विल बी वर्किंग ऑन एन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस. ओके, मतलब आपकी सिस्टम पर. फॉर एग्जांपल अभी समझो मैं हूँ, ओके, अनुराग है एंड सर्वेश है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं. गॉट इट? ओके, हाँ एग्जैक्टली, वी कैन से गिटहब इज लाइक एन वन गूगल ड्राइव. फाइन. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गिटहब पर जाके रेपोजिटरी बनाता हूँ. ओके, एंड रेपोजिटरी बनाने के बाद मैं पहला क्या करूंगा, वहां पर एक अलग अलग कोलैबोरेटर ऐड कर दूंगा टू अनुराग एंड सर्वेश, और अनुराग एंड सर्वेश को किसी पिंग कर दूंगा ऑन व्हाट्सएप, क्या मैंने आपको कोलैबोरेटर ऐड किया, जस्ट गो ऑन योर गिटहब अकाउंट. ओके, एंड यू कैन जस्ट एक्सेप्ट माय कोलैबोरेशन, एंड नाउ आई विल बी जस्ट असाइनिंग देम टास्क. क्या आप अबाउट पेज बना देना, और अनुराग को बोल दूंगा मैं, आप बना देना एक लॉगिन पेज. ओके, एंड आई विल बी मेकिंग index.html, इट इज अ होम पेज. ओके, सो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो भी हमने रेपोजिटरी बनाया होगा उनको अपने अपने डिवाइस पर क्लोन करना होगा. वो क्लोन करने के बाद दे विल बी वर्किंग एज पर माय गिवन दिस गाइडलाइंस. ओके, सो मैं बोलूंगा ये फोल्डर में आपको अपना ये बनाना है, और उसके लिए आपका स्टाइलिंग अलग लिखना है. समझ रहे हो? अभी एक ब्रीफ आइडिया मिल रहा है. हैव एवरीवन गॉट इट? ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट इज गिट एंड गिटहब? या डोंट वरी, डोंट वरी, हम अभी इन एन फ्यू सेकेंड देखेंगे कैसा हम हमारा कोड पुश कर सकते हैं, लेटर हाउ कैन वी यूज इट. फाइन, ज्यादा थियोरेटिकल नहीं जाते हैं. देखो, इंटरव्यू के लिए हम बेसिकली ज्यादा थियरी पढ़ के जाते हैं, बिकॉज वहां पर हम कोड करके नहीं लिख ये कर सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टेक्निकल राउंड होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो सब पहले ही कंडक्ट हो जाता है, जस्ट टू टेस्ट कि आपका टेक्निकल कैसा है, राइट. फिर उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू राउंड होते हैं, वहां पर आपके जो भी आपके लैंग्वेजेस आपको आते हैं उसके बारे में आपके ये होते हैं, मतलब आपके ये पूछते हैं, पूरा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उसके बारे में सच में, मतलब वो प्रोजेक्ट आपने बनाया है कि नहीं, वो सब पूछने के लिए. Exactly. Exactly. The Pranayata is wrote the same way. You are putting multiple persons so can do individual at last add on mastermind. Exactly. Yeah. आप वो भी कर सकते हो. Yes. Branches can also be used for that as well. Fine. So हम अभी देखते हैं, हम हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारे डिवाइस पे अवेलेबल है. हाउ कैन वी अवेलेबल इट ऑन इंटरनेट नाउ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं आपको ये करना है. ओके, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं ये करना है कि इंस्टॉल करना है, आपको जस्ट पहला आपको गिटअप पर जाना है. You just have to go on this, that is GitHub. Okay, just go here. मेरा पहले से लॉगिन है, you can just see from here.
आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको लॉग इन करना होता है. ओके, सो लेट मी साइन इट आउट. देखो आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस, राइट? ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा github.com, राइट? यू जस्ट हैव टू, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो जस्ट साइन अप. एंड नाउ कीप अ नोट ऑफ इट. आपने जो ये करते वक्त ये किया था, सेटअप करते वक्त यूज किया था जीमेल अकाउंट, ओके, वही अकाउंट आपको यूज करना है अभी. समझ रहे हो? तो मैंने आपको बोला था कि जब आप सेटअप करोगे तो इंश्योर कि आप जो गिटअप के लिए अकाउंट के लिए जीमेल यूज करोगे वही यूज करो, या तो उस, बिकॉज अगर आप दूसरा ईमेल यूज करोगे सो आपका जो भी कोड है वो यहाँ पर पुश नहीं होगा, आपको बार बार एरर्स दिखेगा. ओके, फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग कि आप हमारा पहला जो भी आपका जो जीमेल यूज किया हो आप उसको यहाँ पर यूज करोगे. ओके, so let me sign in. Okay, so first of all let me sign in, just let us go over here. Okay, okay, as soon as you come over here, fine. Now what I want, मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पर जो भी कोड है उसको कहाँ पर पुश करना है, फ्रॉम लोकल स्टोरेज टू दिस स्टोरेज गिटअप. ओके, बट बिफोर दैट सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अभी. आपको क्या करना है, गिटअप पर जाके नॉर्मली जैसा आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर साइन इन करते हो वो करना है. ओके, उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, दिस इंटरफेस. ना यहाँ पर मेरा भरा हुआ है, ओके, समझ रहे हो, बट आपका भरा हुआ नहीं रहेगा. फाइन, आपको सिर्फ ऐसा नॉर्मल इंटरफेस एक दिखेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर ऐसा होगा और यहाँ पर थोड़ा कुछ होगा. यस, ओके. अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला था, पहला आपको रेपोजिटरी बनाना होता है. तो रेपोजिटरी इज नथिंग बट मेकिंग वन फोल्डर, राइट? तो आपको गिटअप पर अलग अलग फोल्डर बनाने होंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए. ओके, सो आई बी, आपको अगर नया रेपोजिटरी बनाना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन न्यू, और यहाँ से भी आप बना सकते हो. देखो यहाँ से योर दिस क्रिएट न्यू दिस, वेट इज, हाँ ये दिस आइकन, सॉरी दिस आइकन. Okay, यहाँ से new repository, not on my profile. You just have to click on this plus icon and you can just create new repository from here. Okay, so let us create one new repository by clicking on this icon new. Okay, I will say git demo alpha batch. Okay, मैंने क्या बनाया, एक repository का नाम बना दिया git demo for alpha batch. यहाँ पर आपके थोड़ा description देना होता है. Okay, so that अगर कोई यूजर आता है इस पर तो उसको समझेगा ये हमारा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है. Okay, it's not necessity कि आपको बनाना ही है. Okay, but for an good concern, good practice, you can just write some type of description. I will be saying it's an git demo practice for my alpha batch. Fine, description लिख दिया है मैंने, repository क्यों बनाया. Now यहाँ पर है public and private. Public क्या होता है, see, anyone on the internet can able to see your repository, right? एंड प्राइवेट मतलब क्या होता है, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो तो आपको क्या होता है कि आपका जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हो वो किसको दिखे ना, राइट? तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप अपना प्रोजेक्ट प्राइवेट बनाते हो. बट जब आप सीखते होते हो, ओके, व्हेन यू मेक प्रोजेक्ट फॉर योरसेल्फ, आपको आपको क्या करना होता है कि आपका वो प्रोजेक्ट सब लोग को दिखना चाहिए, राइट? वो आपका कॉपी कर सकते हैं बट आपके जो भी फोल्डर है उस पर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. तो आप डरो मत क्या मेरे फाइल को वो ये कर सकता है, एक्सेस करके कुछ चेंजेस करेगा तो मेरे फाइल पे रिफ्लेक्ट होगा, नहीं. इट कैन एबल टू मतलब एक्सेस योर दिस, बट वो आपके इस पे कुछ अपडेट नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते टिल देन आपने उसको कुछ कोलैबोरेटर नहीं बनाया. ओके, कोलैबोरेटर मतलब आपके इसके ऊपर आपकी टीम के अंदर आपको वर्क नहीं कर रहा. मतलब फॉर एग्जांपल मैं और सर्वेश हूँ, तो सर्वेश क्या कर रहा है, मेरा फोल्डर उसके अकाउंट मतलब उसके पीसी पर ये कर रहा है, डेट इज क्लोन कर रहा है, बट मैंने उसका एक्सेस दे के नहीं रखा. तो क्या करेगा, सिर्फ क्लोन मतलब एक कॉपी उसके फोल्डर उसके डिवाइस में ये हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एक कॉपी है मेरे फोल्डर का उसके डिवाइस में बन सकता है, और उसके बाद वो कुछ भी करे बट वो जो मेरा मेन फोल्डर है वो उस पर कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसको कोलैबोरेटर करके ऐड ही नहीं किया. समझ रहे हो? ओके, सो ऐसा नहीं कि आप पब्लिक करोगे तो कोई भी आपके चेंजेस कर सकता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. गॉट इट? टिल द टाइम यू वोंट कॉल देम एज एन कोलैबोरेटर, आपके इसमें चेंज नहीं कर सकते. गॉट इट? तो पब्लिक का ये यूज होता है, प्राइवेट का एज आई सेड. ओके, for now ignore this is nothing but add readme file and other stuff which is not at all this important. Now you just have to create this, click on this button, right? यहाँ पर अभी हमारा repository ये हो गया. अभी हमें ये lines of codes है, ओके, बट बिफोर दैट अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके आप आपका बिफोर पुशिंग ऑन द
दिस आप हमारा आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप पहले देख लेने का कि आपका जो भी है इट इज बीन सेव्ड, मतलब पूरा अच्छे से कमिट है क्या नहीं। तो एज सुन एज आई डू गिट स्टेटस देखो ऑन ब्रांच मास्टर एंड नथिंग टू बी कमिटेड, मतलब हमारा पूरा सेव करके रख चुके हैं। गॉट इट। अभी मैं क्या करूंगा, गिट इनिट ऐसा हमने कर लिया था राइट। ओके, मैं सिर्फ ये वाला करूंगा, ये जो 3 लाइन्स ऑफ कोड है उसको मैं कॉपी करूंगा। ओके, जो इधर लिखा है ना, और पुश एन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम कमांड लाइन, तो हमने पहले से इधर रेपोजिटरी बना चुके हैं राइट। सो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मुझे पुश करना है ओके into the GitHub. Okay, so I will just copy this 3 line. You can just click on this icon here on the right hand side, or you can just copy it from here as well. Copy this 3 line from here. Okay, just paste it over here. Control V से देखो ये तीनों लाइन आ गया। Now just press enter. Okay, it will take some time. देखो फाइन, यह कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट एंड इट बिन सेव 100%, उसका मतलब है आपका अच्छे से ये हो गया, मतलब इट्स बिन ऑल, मतलब आपका अच्छे से पूरा लोकल स्टोरेज टू दैट इज ऑन द क्लाउड स्टोरेज ऑन द गिटहब, इट्स बिन सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड इट आउट। ओके, अभी आपको देखना है सच में हुआ है क्या। यू विल बी सेइंग नो इधर कहाँ पर है, जस्ट रिफ्रेश दिस वंस। देखो यहाँ पर जो भी आपने index.html के लिए जितने भी ये लिखे थे देखो चारों लाइन के कोड्स आ गए। ओके, एंड यहाँ पर देखो हमने कौन सा ब्रांच बनाया था, 2 ब्रांच, मास्टर एंड दिस ब्रांच राइट। ओके, सो देखो इधर बाय डिफॉल्ट वी आर ऑन द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच यहाँ पर क्यों दिखा रहा है, रीजन बिहाइंड दिस इज आपका जो भी मास्टर ब्रांच होता है जब आप उसको क्लाउड स्टोरेज पे डालते हो तो उसको मेन ब्रांच बोलते हैं, समझ रहे हो। तो वही उसका नाम क्लाउड स्टोरेज, मतलब गिटहब पर आके मास्टर ब्रांच का हमारा हो जाता है मेन ब्रांच। गॉट इट, समझा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ चेंजेस किए मेरे फाइल में। Okay, so let us do on the master branch itself. So I will say I have done sorry, I have done any changes again. Fine, now let me commit it. So I'll say git add dot, I'm doing on the master branch itself. Okay, don't worry, I am saying recent update for now. Okay, आप अपना मीनिंगफुल ये कर सकते हो, I'm saying recent update। बट यहाँ पर आप देखोगे 5 लाइन के कोड से मैंने कमिट तो किया, बट इज इट विजिबल हियर। देखो मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। ओके फाइन, इज इट अवेलेबल हियर। देखो ये हमारा ये है राइट, जो हमने अभी रिसेंट कमिट किया वो इधर दिख भी नहीं रहा है, मतलब जो रिसेंट मैंने लिखा था अपडेट कमिट के कुछ नाम दिया था राइट, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। देखो यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है क्या वो लाइन ऑफ कोड विच इज ओवर हियर। ओके, सो आपको अभी क्या करना होगा, आपको लोकल स्टोरेज से आपको क्या करना होगा, उसको पुश करना होगा। तो इसके लिए बोल रहे हैं देखो ये आपने ये किया है, रिसेंट अपडेट किया है कमिट में। Okay, and one file has been changed and 2 insertion, one on the next line and one on the line have wrote it right. Okay, now what I want, मुझे मेरा क्लाउड स्टोरेज पे भी अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक कमांड लिखना होता है git push। git push का मतलब है जो भी अभी मैंने किया है उसको मुझे पुश करना है ऑन माय दिस क्लाउड स्टोरेज। as soon as I do git push enter, देखो आपका जो भी ये 5th लाइन लिखा था वो वहां पर भी ये हो जाएगा gone right। as soon as you go here just refresh this page। ओके, आई हैव डन एनी चेंजेस इज बीन रिफ्लेक्टेड हियर, आपका जो भी कमिट था ना वो भी दिखेगा। देखो रिसेंट अपडेट जो हमने कमिट को नाम दिया, समझा। हैव एवरीवन गॉट इट नाउ। हाँ वो अनलिमिटेड होता है, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ये है, इट्स एन ओपन सोर्स सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय गिटहब। ओके, सो इट्स फ्री फॉर अस, आपके पास अनलिमिटेड होता है, नो वरीज। यस, समझा। अभी मैं 3rd दिन आके वापस जैसा कमिट करूंगा उसके बाद ऑलवेज मेक श्योर आपको उसको पुश करना है, या फाइन। अभी आपको क्या करना है, अभी समझो किसका एक प्रोजेक्ट पहले से अवेलेबल हो ऑन इंटरनेट। ओके, सो कितने बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले से प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट को, उसको यूज कर लेते हैं एज एन प्रोजेक्ट फॉर देम राइट। सो वो कैसा कर सकते हैं, इट्स एन जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड, आपको सिर्फ गिट क्लोन करना होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझो, मेरे इसका ही ले लेते हैं, कौन सा एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन माय अकाउंट। ओके, for now let us go on this total fitness this। ओके, नाउ मेरे को क्या करना है, देखो ये किसका भी समझो, एक किसका भी बंदे का एक कौन सा प्रोजेक्ट है, फाइन।
नाउ व्हाट आई वांट, ये जो भी प्रोजेक्ट के लिए उसने किया है, इतना सारा ये बनाया है, फाइन, मेरे को क्या करना है, उसको मेरे सिस्टम पर लेके आना है। इधर तक सबको समझा है? बिफोर दैट कैसा हमने पुश किया ऑन द गिटहब, सबको समझा है? हैव एवरीवन गॉट इट गाइस? यस। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के इसमें से, या तो आप अपने इसमें से भी ला सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे के इसमें, जैसा मैं मेरा कर रहा हूँ, मेरे खुद के अकाउंट में से मैं मेरे इसमें अभी लेके आ रहा हूँ, राइट? आप अपना भी, फॉर एग्जांपल मेरे को सर्वेश का गिटहब रेपोजिटरी से कौन सा प्रोजेक्ट उठाना है, तो मैं उसको, ऐसा नहीं कि मेरे को उसको पहले इन्फॉर्म करना होगा, सर्वेश सर्वेश मुझे आपका सिर्फ प्रोजेक्ट दे दोगे प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं। ओके, अगर उसने आपका मतलब फॉर एग्जांपल समझो उसका पब्लिक रखा है रेपोजिटरी, तो आई जस्ट हैव टू गेट द यूजर नेम, पहले आपको उसका यूजर नेम समझना चाहिए, मतलब उसको आपका पता होना चाहिए। ओके, तो सर्वेश का भी है, सर्वेश 123, तो मैं पहला क्या करूंगा, उसका सर्च करूंगा। ओके, सर्वेश 123, फिर उसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट चाहिए, अगर उसने पब्लिक रखा है वो दिखेगा। उसके बाद जैसा आप क्लिक करोगे, जैसा मैंने क्लिक किया था, ये सब आपका उसमें दिख जाएगा। मेरे को क्या करना है, उसको मेरे अकाउंट पर लेके आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सी जैसा कोड लिखा है ना, जस्ट गो भैया, कॉपी दी HTTPS लिंक हो गया, जो HTTPS में लिंक अवेलेबल है, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर। ओके, अभी आपको कौन सी भी डायरेक्टरी पे बना रहा है, ओके, तो फॉर मेरे को अभी डेस्कटॉप पर बनाना है। ओके, सो लेट मी गो ऑन माय डेस्कटॉप, मतलब टर्मिनल पे आपके डेस्कटॉप पर जा सकते हो, तो जस्ट गो ऑन द डेस्कटॉप एंड फ्रॉम हियर यू कैन ओपन योर टर्मिनल। CMD स्टैंड फॉर कमांड लाइन। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे आपका कहाँ पर ओपन हुआ है, डेस्कटॉप पर, मतलब आपका जो भी आप फोल्डर आपको बनाना चाहते हो वो डेस्कटॉप पर आप बनेगा। ओके, सो फॉर दैट आपको अभी उसका फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पर अभी उसका फोल्डर लेके आना है, तो उसके लिए आपको कमांड लिखना होता है git क्लोन, एंड उसके बाद आपको वो जो भी आपका ये था विच इज ओवर हियर, वो जो हमने ये किया था ना दिस वन, उसको सिर्फ आपको कॉपी करना पड़ता है। ओके, उसके बाद आपको वो वाला इसको पेस्ट करना होता है। देखो, एज सून एज आई डू एंटर, देखो क्या हो जाएगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। See, it's been doing. Okay, it's been receiving all the objects. See, 116 objects हैं. See, it's been saying 25% has been done. Let's wait. Okay, till it's done 100%. 100% होने के बाद हमारा ये है वहाँ पर रेडी हो जाएगा। और ईच एंड एवरी फाइल, जो भी इधर फाइल है, एक बार हम देख के लेते हैं कितने सारे फाइल्स है। देखो, अबाउट है, अबाउट जो JS फाइल है, राइट, HTML का फाइल है बहुत सारे, राइट। ओके, वेर एज हमारे पास फोटोज वोटोज भी है, बहुत सारे इंडेक्स फाइल, मतलब जावास्क्रिप्ट के फाइल है, राइट। ओके, सो वो सब हमारे पास अवेलेबल होगा। ओके, नाउ इट्स बीन सेइंग 100% अपडेटिंग फाइल एंड 100% इज बीन डन, राइट। देखते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ गया है क्या कुछ बन के। सो लेट मी क्लोज दिस डाउन। ओके, सो वेयर इज इट, जस्ट वेट, just wait, let us check it on my desktop. Git clone this. Why is it not available here? Git. Let me check it out. कहाँ पर बना है? Let me go on my this. कहाँ पर तो नहीं बना। हाँ, सी यहाँ पर दिख रहा है। I don't, यहाँ पर आपका अपडेट नहीं हुआ रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। कैन यू एबल टू सी इट गाइस? यहाँ पर भी अपडेट हो जाता है, डोंट वरी। ये देखो अभी आया। It was taking some time. Let us open this with an VS Code. Okay, we will be opening this with an VS Code. देखो जो भी फाइल्स थे, देखो यहाँ पर each and everything has been there. ओके, इमेजेस भी है, देखो जो इमेजेस थे ना, इमेजेस यूज किए थे वो सब भी है। ओके, और अगर मेरे को उसको रन करना होगा तो लेट्स रन द index.html which is we can say the this file landing page of this website. Let us open this by going live. Go live क्या है इधर, डोंट वरी, हम इसको सिर्फ लोकल होस्ट पे देख रहे कैसा दिखेगा ये प्रोजेक्ट। See, this was the website. Okay, everything is been working है, ऐसा नहीं कह देखो, each and everything will be working. Okay, अब let us calculate the weight. Let us say it's in centimeter. Let's calculate this. See, your BMI is this and you are in the normal weight. Okay, each and everything will be working है। देखो, there is no conflicts here, क्या कुछ सर्विस आपका वर्क नहीं होता, no, not like that.
everything will be working here. See, each and everything has been working here. Is it amazing now? हाँ वेट, git bash कुछ नहीं होता है, यही होता है, git का ही यूज होता है. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि git bash is other stuff, but before that सबको समझा है how can we easily get each, मतलब किसका भी प्रोजेक्ट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट or into our system now. Yes, can you able to clone any of the repository available on GitHub now? Yes. ओके, सो मैं आगे के लेक्चर्स में क्या करूंगा ना, एक रेपोजिटरी बना दूंगा जब से हम HTML स्टार्ट करेंगे. ओके, दैट इज फ्रॉम द टुमारो इटसेल्फ. ओके, टुमारो वी हैव द क्लास सैटरडे, राइट, जो हमने अब गिट एंड गिटअप का पूरा देख लिया है. ओके, जो भी यूज केसेस थे, जो भी कमांड्स थे, वी हैव सीन इट. ओके फाइन. तो हाँ, इसके बाद एक और एक है, एक गिट पुल करके भी कमांड होता है. ओके, वो क्यों यूज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो हमने ये हमारे इस पर ये कर दिया है. ओके, क्लोन कर दिया है ना, ये हमारा जो भी है टोटल फिटनेस. ओके, आई विल बी गोइंग ओवर हियर इनसाइड दिस. ओके, आई विल ओपन दिस फोल्डर इन माय कमांड प्रॉम्प्ट बाय एंटरिंग द cmd. ओके, नाउ टोटल अभी मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल अभी समझो ये जो बंदा था, ओके, लेट अस अज्यूम कि अनुराग ने फोल्डर बनाया था, उसने अभी कल वापस चेंज कर दिया है, बट मेरे इसमें वो अपडेट ही नहीं आ रहा है. अपडेट कैसा आएगा, राइट, बिकॉज हमने वो वाला वर्जन तो नहीं किया था, फोल्डर हमारे इस पर डाउनलोड क्लोन नहीं किया था. बट मेरे को क्या करना है, मुझे वो जो उसने अपडेट किया था कल, कल मीन्स टुमारो, नॉट द यस्टरडेज वन, कल मतलब टुमारो, कल उसने अपडेट किया था, वो मेरे सिस्टम पर भी दिखना चाहिए. तो मैं वापस जाके वो गिट उधर से कॉपी करके वो तो नहीं करूंगा, राइट. क्या मैं पहले इसको डिलीट करूंगा, फिर वापस वापस उसके गिटअप पर जाके वो कॉपी करूंगा कोड, और फिर वापस इधर आके पेस्ट करूंगा गिट क्लोन करके. वो नहीं करना आपको. आपको जस्ट टाइप करना है गिट पुल. तो वो क्या करेगा, अगर वो देखेगा पहले कुछ अपडेट है क्या वो फोल्डर में, वो जो भी जिसने बंदे ने कुछ अपडेट किया है, ओके, वो देखेगा, अगर कुछ अपडेट किया रहेगा तो वो अपने खुद को भी अपडेट कर देगा. जस्ट डू गिट पुल, इट्स बीन सेइंग ऑलरेडी अपडेटेड, मतलब उसने वो बंदे ने अब तक कुछ वो रेपोजिटरी में अपडेट नहीं किया. अगर कुछ अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी अपडेट हो जाएगा. गॉट इट गाइस? कैसा आपको अपडेट भी करना है, अगर आपको कुछ अपडेट ये भी करना होगा तो आपको कैसा अपडेट करना है, एवरीवन गॉट इट? यस. तो सबको समझा है गिट गिटअप कैसा यूज करना है, एंड हाउ कैन वी डू द वर्जन कंट्रोल, एंड व्हाई वी डू मेक यूज ऑफ दिस ब्रांचिंग एंड एवरीथिंग. यस. Can you able to easily track your this now software, or we can say the web application websites, right? Can you easily able to version control it? सबको आ सकता है अभी. ओके, एंड ब्रांचिंग का यूज कर सकते हैं हम. यस, या ओके फाइन. सो किसको कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क नाउ, और एल्स मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बता देता हूँ हमारी वेबसाइट का ही. बट बिफोर दैट मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, राइट. फाइन. So let me stop this.